So hello guys, we are sitting with the, I'm talking to all the people involved in the song. So hi guys, I'm sitting with all the makers of the song Reshmi, and on my right hand side I have Divij and Nilanchal, and on my left hand side I have Umang and Nandika. And it's been a great pleasure to host you guys today at the podcast, and I really want to firstly appreciate you guys for the amazing song that you guys have made. So without wasting any further time, I'm just so excited for the question that I have, and so many questions that I have in mind to ask you. So let's hop on to that. So, firstly, this is a question to everybody: that what was the approach while making the song? What was going on in your head while making the song? What is your expectations from this song? He wanted to make a story about April Fools, Wow. and so that's a process we follow basically. कि जब भी कुछ गाना कहानी आता है मन में तो ही calls की कहानी है दोस्त ये सुन ले कहानी ऐसा ऐसा है and गाना चाहिए उसके ऊपर में and बता तू फिर आगे का. Yeah, one day I was just going to my college on 1st of April. तो उस समय अचानक से कहानी मुझे स्ट्राइक हुआ था. Then after few months I just called him and कि ऐसे ऐसे कहानी है. So we are planning to release this on 1st of April exactly. मतलब it's either releasing on 1st of April or we won't release it at all. So 4-5 महीने पहले इसको फ़ोन किया था and I narrated him the story. Then बोला कि this is a story and गाना दे इसके ऊपर. And so उसके बाद after 2-3 weeks he came to me with a song. And उसके बाद नहीं लंबा लगा लंबा लगा काफ़ी महीना लगा. 1 महीना लगा. Couldn't crack. I had 3 songs in mind. जिसके Yeah. आप सभी भी पढ़े हुए हैं कुछ अलग अलग करके lyrics भी पूरे अलग हैं and because my pattern of work is to start a song and I compose and I write both. So मतलब इसके अलावा जो भी ड्राफ्ट्स है वो फुल रिटन सॉन्ग्स है. Not entirely because मैं क्या करता हूँ पहले सुनाता हूँ इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करता कि नहीं पूरा ले लो फिर मैं वापस बनाऊंगा पूरा होता नहीं है. And he because he has this habit, it's good or bad I don't know, वो कुछ मना नहीं करता वो सब ले लेता है. This song was not made for this. It's orchestral. The story is very simple. Story काफी simple है heart में but इसने कहा कि नहीं अच्छा है. But इतनी simple story और नाम रेशमी. I'm really intrigued by the name. Okay. So how did you get the name Reshmi? So first telling you about the story was more simple than that. मतलब अभी जो कहानी है हमारे पास, so the story ended when लड़का बोलता है कि this was a April Fool's plan, but yeah that was actually very उसमें I added a bit of a twist कि then the girl comes with the twist final. So कहानी का नाम पहले होने वाला था April Fool's Special, but then he came up with the song जो कि उस गाने से start मतलब उस word से start हो रहा था. Then we just named the entire And if I can interrupt in just 1 minute, we have a song called Naina, and the first word is very important in any given song. So I wanted a word which is what is a word जहाँ पे sensitivity इतनी है कि छू तो टूट जाए. So that had to be the thing. Silk is like that. Very well thought and मतलब रेशमी is a word जो सुनते ही ऐसा लगता है कि यार मतलब कुछ तो है इसमें. And credits to her for that. Right. पूरा Right, and the female vocals are amazing, and it's being sung by Nandika here. So Nandika, how did you decide to hop on with Umang and Nilanchal for this song, and just what was the first thought when you went through the lyrics and when you went through their expectations about this song? It's like I got a call last year in November, Nilanchal का and Umang का call आया था. I was out of station at that time and तब collaborations and all के बात हो रहे थे कि हाँ next जब मिलेंगे तब करेंगे. तो वैसे करते करते we reached here and एक दिन फिर तो वही मतलब आप लोग तीनों ही ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे पढ़ाई. थे what do you mean थे? But नहीं please continue. हाँ तो फिर कौन से मंथ में I guess around January. ना दिसंबर में कॉल तुम बाहर थी ना फिर. हाँ एंड देन जनवरी में वापस आए तो फिर वापस कॉल किया था. हाँ तो भाई उसी से रिलेटेड एंड देन इसने अचानक लिरिक्स एंड इसका रफ भेजा कि ये वाला गाना गाना है क्या तुमको. एंड आई रोट दिस सॉन्ग मैं और नीलांचल मिलकर कर रहे हैं एंड आई लिसन टू द सॉन्ग. माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज मतलब आई वॉज स्पीचलेस उस टाइम कि क्या लिखा है क्या मतलब क्या गाया है. उमंग ने अपना वोकल रिकॉर्डिंग भेजा था, क्या गाया था उसने उस टाइम एंड वो लिरिक्स मतलब एक बार सुनते ही. Just one question. आपने जो इसको वोकल रिकॉर्डिंग भेजा था कितना टेक्स लिया था? कम से कम 4 से 5 तो लिए थे. गाना टफ भी तो है ना यार. वही भारी टफ exactly. गाना है यार उसमें. And then after that, after Umang sent you the voice note, बस या फिर आई वॉज ऑन द बोर्ड तुरंत ऐसे कि हाँ ठीक है करना है let's do it, मुझे. करना है हाँ.
And during the recording of this song, did you face any challenges कि नहीं यार ये मैं line नहीं पकड़ पा रही हूँ या फिर ये कुछ this is getting difficult or anything like that? नो सच चैलेंजेस. एक दो वर्ड में कुछ डिफिकल्टी हो रही थी तो उमंग वाज देयर, मतलब उसने पूरा बता दिया कि ये वर्ड ऐसे होगा. हाँ, जिस तरह से ये एनालाइज करते हैं ना एक एक वर्ड, वी वर इन द स्टूडियो. हाँ, उसमें जैसे बेकर आ रही तो बेक क आ रहा है, तुम्हारा र ठीक से नहीं आ रहा है, उसको और अच्छे से प्रोनाउंस करो. जैसे आई रिमेम्बर बेकर आ रही में 2-3 टेक लगे थे, बाकी सब ऐसे स्मूथली Umang हो is the गया था. Himesh Reshammiya of your group of what? You had to take one name, just Himesh Reshammiya is the music composer you come up with. Take any other composer. No, but Himesh sir is also great. ये तो बोलना ही कैमरा के लिए बोलना पड़ेगा, ये तो बोलना ही पड़ेगा. बहुत टैलेंट. Oh! कम बैक तुमका भी हो रहा है. और क्या कमबैक है माशाल्लाह, बाप रे बाप. Definitely. But great, very well sung, Nandika, and it's really And one thing if I can tell about her process, definitely. अगर कोई भी गाने का मतलब if I imagine the song to be in such a shape कि गाना ऐसे होना चाहिए, so people do take detours कि नहीं मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी. नंदिका ने अपना टच तो ऐड किया है since day one, but अगर कुछ बात थी तो उसने उसको अडेयर किया within seconds कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, उसको उसने संग अडेप्ट कर लिया. मैंने नहीं देखा है. आपका like he said, संग adapt करने वाला चीज. So while you were singing the song, is there any favorite particular line of yours which you particularly liked? यार ये 2 लाइन क्या लिखा है, मजा आ गया गा के. Definitely. That the line is here. कोई गलती नहीं है, बस प्यार है ये, या है मेरी बेकरारी. The chorus part, right? Yeah, this one is The meaning. so beautiful. Hi. मतलब दिस लाइन इतना इनसेंस है इस लाइन में. ये पहले सुनते ही सबसे पहले यही लाइन ऐसे होता है ना कि छू गया तेरे को. ये तो सिर्फ पढ़ने से ये तो सिर्फ पढ़ने से कितना अच्छा लाइन लगेगा, ठीक है, कितनी अच्छी शेरो शायरी सॉर्ट ऑफ लगेगी हाँ. कि इसके बाद कुछ तो चाहिए सुनने को और. बट यार आपकी आवाज़ ने इसको डेफिनेटली 4 चांद लगा दिया. एंड आपने अभी भी गाया और अभी भी हम लोग सब ऐसे एकदम चुप होकर सुन रहे थे कि यार क्या गा रही है. You're really God gifted when it comes to your voice, and I think you already know that, and even Umang knows that. But since I've already known the backstory of you, Umang and Nilanjan, let's come on to Divij. So Divij, what was your thought process when you were when you went through this song and when you came across this song for the first time? Okay, so the first time I heard of this idea was basically नीलांचल एक दिन इसको जाना था कहीं, so he had a shoot at SRFTI. So वहाँ पर we had gone for a drive. वहाँ पर ही हम लोग ऐसे ही कैंपस देखते देखते जा रहे थे, तभी ये बोला कि भाई सुनना है, एक आइडिया आया है, 1 अप्रैल को रिलीज़ करेंगे, बहुत गजब आइडिया है. सो उसके बाद ही जस्ट टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ अप्रैल फूल्स विच वॉज एट दैट टाइम, एंड रेशमी फिर वो बाद में हुआ. सो इट वॉज रियली इंट्रीगिंग कि एकदम शॉर्ट सा स्टोरी बट इतना सारा टेंशन, इतना सारा क्यूटनेस उसमें था, सब लेके एकदम शॉर्ट में ही सेट कि आई सेट, फिर बोले चलो करते हैं फिर इसको. क्रेजी. मैंने पहली बार देखा कि 2 लड़के ऐसे ना कोई ड्राइव पे गए हो कि क्रिएटिव बातें कर रहे हैं. ठीक है. नहीं, मतलब इसके साथ हमेशा बीकॉम वाले के बीकॉम मॉर्निंग वाले बीकॉम अच्छा, सुबह तो और क्या ही दिमाग में आएगा. ठीक है. सुबह तो नींद आ रहा था, बट हाँ दिन में थोड़े आइडिया. That is great. मतलब हमारे दोस्त लोग भी अगर ऐसे होते कितना क्रिएटिव कुछ ऐसे बताई देते तो बात ही अलग था. बट you are really gifted as a friend that you have Nilanjan, and you are also really gifted as a friend because you have Divij. Because after all एक दूसरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यार. बट नहीं यार, बहुत क्रेजी. बट one question, because I am not from the music production background or stuff like that, so one question I think, and many people in the audience Thank God उसमें मैं क्या था, मत खा, कुछ छोड़ दे, नमन, just leave something for us. ऐसा कुछ बात नहीं है. बट like we have always wondered कि ये म्यूजिक प्रोडक्शन जो भी होती है, how does that take place? Because I remember watching Aashiqui 2, and उसमें दिखा रहा था कि ऐसे they are singing in a studio and that's how music is being produced. And so is that the way how it's much more difficult, and credits to 2 people for this, 2 pillars जिसके बिना गाना बात ही नहीं कर सकते हम. प्रत्युष रजौदन, श्रेयस भैया, कोटिवन फ्रॉम नागपुर. देन वो आज आ नहीं पाए सैडली, बट प्रत्युष भैया इज द co-composer and the vocalist for this song, and श्रेयस भैया has produced the entire. So जो भी आप सुन रहे गाने में हर एक साउंड वो उनका ही बनाया हुआ है, उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है, खुद बनाया है, सजाया है गाने को. 1 महीने लगा, बहुत मशक्क़त हुई, बट एंड इट इज़ कितने रात, 1 हफ्ते. So नागपुर से कलकत्ता आप लोग So, डिस्टेंस में वीडियो कॉल पे
सब कुछ वीडियो कॉल पे चलता है. Wow. So it's an unbelievable process. मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रही कि ऐसा हो सकता है actually. Wow. You guys made a song on a video call. On a video call, on multiple video calls, and it was just a communication to and fro. And in 10 days, 10 days. मतलब कंपोजर यहाँ पे है भी नहीं. नहीं है. एक सिंगर यहाँ पे, एक सिंगर कहीं और पे. कहीं और. Yeah. Wow, is that possible though? मतलब I don't have now any it idea. is. Now it is. And Arijit does the same way. He doesn't record in Mumbai. Arijit sir भी मतलब यहाँ बैठते हैं. But that's really great because I'm not comparing us with Arijit sir. That but is so ideal है ना हमारे. हाँ, but you guys made it possible, made this whole song possible, and you know पूरा ideation से लेकर पूरा execution तक ठीक है distance पे करना. I don't think it is very easy, especially because if you are producing it on this level, right? But kudos to you guys. But God's gift. I just really want to know that you know apart from all this production में और क्या क्या आप लोग का you know what were the challenges, what were the headaches that you went through, hurdles that you went through. So finance बोलते हैं. So yeah, talking, let's start. मतलब अगर वीडियो से बात स्टार्ट करें तो of course मतलब आइडिया आया एंड आफ्टर आई गॉट टाइम मतलब मुझे शूट करना था इन फरवरी में शूट करना था एंड देन देयर इज अ होल लॉन्ग प्रोसेस कि वीडियो शूट करने के बाद यू हैव टू एडिट एंड देन यू हैव टू कलर ग्रेड इट एंड मिक्स मास्टर एवरीथिंग. सो या इट्स लाइक अ काइंड ऑफ 2 weeks का काम होता है. सो जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे मेरे द पीपल हु आई एम एसोसिएटेड विद स्पेसिफिकली 2 जन का नाम मैं लेना चाहूँगा. दिस प्राजुन मजमदार एंड आकांक्षा रे, ये दोनों थे मेरे साथ. सो प्राजुन भैया इज़ द सिनेमाटोग्राफर एंड द एडिटर ऑफ द फिल्म. वो नहीं होते तो आई गेस मतलब बहुत मुश्किल होती मुझे. एंड या So they took care of the visual thing. the visual thing even exactly. after it. Even after has yeah, been there since the release and everything. He's been doing. the Wow. promotion and in fact मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी गाना का डिस्ट्रीब्यूशन भी इज हैंडलिंग. सो वही मतलब हुआ था फेब में, फिर हमने शूट किया एंड देन पैरेलली द वर्क वाज गोइंग ऑन. आई वाज एडिटिंग द वीडियो एंड दे वर मेकिंग द सॉन्ग. और अब हालांकि म्यूजिक वीडियो है सो वी नीड द म्यूजिक टू एडिट द वीडियो लाइक दैट. सो दे वर डिपेंडिंग ऑन अस कि कितना बड़ा गाना चाहिए आपको एंड मतलब ये म्यूज़िक कितना से कितना देर होना चाहिए. एंड आई वॉज डिपेंडिंग मतलब काफ़ी इंटरडिपेंडेंस वाला काम चल रहा था. दे गेव मी द म्यूजिक एंड देन आई कंप्लीटेड माई फाइनल एडिट्स. सो इन फैक्ट जस्ट फॉर अ फैक्ट 1st April को वी डिड रिलीज द थिंग एंड 1st April को दिन में 2 बजे द होल क्रू सॉ द फाइनल फिल्म. दिन में 2 बजे 6 hours बिफोर द रिलीज. सो दैट्स हाउ थिंग्स. And release अटक गई थी because रिलीज अटक गई थी बिकॉज ऑफ या इतना ट्रस्ट होना चाहिए मतलब भाई दो you know दोस्त के बीच. But मारकाट पे आ गए थे यार. मारकाट पे आ गए थे. Trust took a toll. It wasn't like that always. Hunky dory था. but after the release it's been like some weeks now, right? A couple of weeks now. And where do you think Reshmi will take flight after this? Any idea? Like just give us some light into what Reshmi का future plans क्या है इसके बाद? Is there a Reshmi part 2 or is there Reshmi का रेशमी part 2 this तो one ऑडियंस is पे डिपेंड okay. करता है. अगर Yeah. वो चाहेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगी. एक but Shemusi and Shubhago Shubhago. have been very much active Appreciated. and their work. YouTube section पूरा नाम से भरा हुआ है. And नंदिका knows की So YouTube के अलावा क्या ये Spotify and all? सब पे आएगा. soon अब to तक be I think released. आ भी गई होगी अब तक तो. hopefully yeah when we release this. fingers few crossed. platforms पे आ गए, few कुछ पे आ गया, कुछ पे चल रहा है. Some legal issue and all. We'll promote it once it's all. And out plan on is all to get it out on platforms. radio and basically to take it as ऐसे गाने आजकल चलते नहीं दोस्त. सिंपल सी बात है. आजकल थोड़े डिक्चे चलते हैं. बट क्या है अब उसको सही ऑडियंस मिलेगा तो लोग सुनेंगे भी. नहीं डेफिनेटली. अब आप लोग अच्छे से I really hope that this is marketed really well. You guys have put in all of your efforts and that 2 months down the line I have to I meet you guys again, but this time I have to take an appointment to Oh no, that's other way around. And thanks for doing this, Naman, by the way. अरे thanks क्या है इसमें. Oh by the way I did not introduce myself. Hi guys. Hi guys. One and only. Hi guys, I am Naman Chandak and I am the stand-up comedian and an anchor. Okay. And it's a pleasure to host, be with such talented people, and it's their, actually, I'm thankful to them that they thought that I was, worthy of coming here and taking their interview, right? So they have made this beautiful song. I've heard it on YouTube the day it launched. I was one of the people who was in the premiere.
ठीक है, बट उसके बाद 2 मिनट बाद मेरी मम्मी मुझे बुला दी तो यूट्यूब। ऑल्सो वी हैव अ कम्युनिटी कॉल्ड द माइक ड्रॉप कम्युनिटी। इट इज़ बेस्ड इन कैलकाटा and we organize open mics and comedy shows and poetry shows and everything basically that you can do on the mic. And Nandika, Umang, Nilanchal, all 3 of them have already been to What a some of the superb events. community, it's awesome. Arey, thank you, and I really hope that this community grows on to become the safe space for all the artists around Calcutta and the world. See, very much focus on the Venues. word safe, right? Because you know what is happening in Mumbai and in Khar and in all the other places. The place where we are shooting right now, it's just, It's let's safe. not. Let's Is not. it safe? It's safe. He's there now. Nah, it's quite safe. संभाल It's लेंगे, safe. producer साहब संभाल। Anyways, focus. Let's come back to the song again, right? So रेशमी जो गाना है, ठीक है, उसका जो अंतरा पार्ट है, अंतरा पार्ट में था जज्बातों की कदर जो ये दगर and the whole lines, the whole para after that. So how does, you know, because जज्बातों की कदर जो ये दगर, and you have followed the whole writing scheme, right? So I understand it took you 1 month, ठीक है? To write the song, लिखने में तो 1 दिन लगा। हाँ, but to लिखने में 1 दिन लगा? Yeah. No, you must be kidding. Come on. Modesty. He's being too modest right Yeah, now. टाइम नहीं होता यार उतना ज़्यादा लिखने के लिए, फिर काम भी होते तो ही कर। But ये बहुत अच्छा लिखा आपने 1 दिन के लिए तो फिर। I don't usually rewrite songs, so I keep it one step. But कभी ऐसा हुआ है कि आपने लिरिक्स बनाया है पूरा गाने का, ठीक है, एंड उसके बाद बिकॉज म्यूजिक के साथ वो ट्यून इन नहीं हो पा रहा, 100%. And this beep is not very critical about my music per se. So that's I'll just like to add up. ये मुझे कुछ भी लिरिक्स एंड म्यूजिक देता है, there's 1 या 2 बार रिजेक्ट किया होगा, बट किया ही नहीं है शायद तक। And reject नहीं करता, request करता कि यार ये नहीं ये यार, अगर हो सके कुछ तो और। चेंज कर दे इसको, वरना दोस्त है ना, मुंह पे बोल नहीं सकते कि No, मैं यार, बहुत खराब लग रहा है। मैं इसको बोल देता हूँ हाँ। कि कहानी बहुत, ये तो दोबारा किसी घटिया गाने सुनिए, दोबारा मत लेकर मेरे पास। मैं अभी 4 कहानी सुना चुका है मुझे लास्ट 1 मंथ में, मैं एकदम बेकार है। ब्रिंग बैक द ओल्ड नीलांचल। And compliment where credit is due, I think Nilanchal stories give me that opportunity to write good songs, because बाकी में मौका नहीं मिलता यार, मैं खुद के गाने उतना अच्छे लिखता नहीं हूँ, इसके गाने अच्छे लिखता हूँ। यार लेकिन आप एक बात बताओ, दिविज और नंदिका, did you guys meet because of them? Both of you guys? We met. हाँ, Just literally For the last first time right now, You Yeah. guys met for the first time right now? Yeah. वो किसी से मिलता नहीं है, प्रोड्यूसर है Yeah, फोन पे ही, busy अमित, guy. हेलो अमित। मुझे क्योंकि वही लग रहा है कि मतलब आप लोग दोनों के पास इतनी सारी कहानी है एक दूसरे के बारे में, आपके पास कोई कहानी है इनके नीलांचल के बारे में या फिर उमंग वन के बारे स्टोरी में? वन स्टोरी वो- या जो फर्स्ट टाइम ऐसे मिले थे। बट प्लीज बताओ। प्लीज नहीं, यू टेल। नहीं, नीलांचल तुमने बताया था वो उस दिन मुझे मुझे। बता चुका है फोन पे, अभी तक just narrate the story now, what happened? It was like the first time we met कॉलेज में ना, चैपल Yeah, के सामने, chapel के पास में, चैपल yeah. के पास में। हाँ, he came to me and he said, "You Nandika, right? You sing so well." And I was like, "Thank you." बस उतना ही। उस time I did not know Nilanchal, Yeah. मतलब I did not know him And एकदम भी। so मतलब एक फैन बॉय मोमेंट हुआ था अच्छा। मेरा। Crazy. No, that Fanboy, yeah, And you know, this was how many years ago? 1 year, 1 year ago. April में kinda 2024 में ही हुआ था। अरे वाह. And we didn't imagine, मैंने तो And सोचा 1 year नहीं था। later, one year Yeah. later, you Yeah. guys were together in a song, and this is crazy. And David, what do you think? You know, as a producer or as somebody who's been in the production of this song, so anything that you felt you guys could have been better? या एक point था कि यार मतलब पूरा गाना के बाद मुझे realize हुआ कि नहीं ये चीज़ कर सकते थे जो अगली बार ध्यान रखेंगे. See, गाना पूरा बनने के बाद नहीं, वो तो डे 1 से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ठीक है आज भी इसके साथ हूँ। सो उमंग एंड नीलांचल दोनों ने, नीलांचल तो वीडियो वाला पार्ट हैंडल किया, बट उमंग जो सॉन्ग का बनाया था डे 1 पे, आई थॉट कि डे 1 पे वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं था, तो somehow it didn't टच मी, बट उसके बाद जब धीरे धीरे वो सॉन्ग पूरा फिनिश में आया ना, उसके बाद आई डेंट थिंक कि और कोई चेंजेस का ज़रूरत था। इट वॉज नियर अबाउट परफेक्ट। So starting में आपको confidence नहीं था, but you guys you still नहीं, had- बिकॉज द थिंग वाज कि एक म्यूजिक वीडियो वाले पार्ट में आई वाज थॉरली इन्वॉल्व। म्यूजिक वाला पार्ट टोटली उमंग हैंडल कर रहा था एंड नीलांचल उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था डायरेक्टली। आई वाज नॉट रियली डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट, सो इसीलिए आई डिडंट हैव द फर्स्ट हैंड, लाइक जैसा फर्स्ट ड्राफ्ट आया, सेकंड ड्राफ्ट आया मेरे पास, आई डिडंट यूज टू गेट द ड्राफ्ट्स इंस्टेंटली। मतलब वो आता था, एक बार ये प्रूफ रीड काइंड ऑफ करता था, उसके बाद मेरे को भेजता था कि भाई ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको आप भी भेज दो। कॉलेज में हो?
नहीं नहीं, हम लोग साथ में थे। अच्छा मतलब उससे पूछिए बस still सवाल। आप लोग तो अभी तो एक आध महीने पहले ही पास आउट हुए हो, कितना टाइम हुआ आप लोगों को पास 4 महीने। 4 महीने। You guys are very young and I am also very young. I am too younger than all of you. Younger than all of you, right? हाँ यार, Yeah. लगता नहीं है अचीवमेंट्स हमारे बाप से बेसी है इसकी। नहीं, नहीं, यार, अब की बार 200 यार वो किसने कमेंट किया था भाई? वो क्रेजी था बट जो भी था। हाँ यार बट हमें पता है कोई भी ऐसे अब की बार 400 पार करता है तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, so let's not comment on that. But okay, so you guys are very young, right? And I am also very young, and I'm in the stand-up comedy field, so I faced a lot of challenges because I'm young. ठीक है, कुछ ऐसे challenges होते हैं जहाँ अंडर एस्टिमेट करते हैं कुछ सीनियर्स, या फिर ऐसा हमें स्पॉट्स नहीं मिलती है बहुत जल्दी से बिकॉज यू नो जस्ट एज में छोटे हैं, दे डू नॉट टेक अस सीरियसली. So was there any challenges that you faced because you guys were young, you guys were you know making something new, going out of the box? Any The specific thing was challenges? कि everyone involved, specifically me and Umang, हम लोग को experience नहीं है, so we relied a lot on the seniors. जैसे Right. I was relying a lot on Prajan भैया, he was relying a lot on Pratyush and Shreyas. So we did put our inputs, मतलब ऐसे करना है, क्या चीज़ कैसे हम लोगों ने imagine किया था. But of course, along the way they did guide us a And we're lot. lucky to have them, honestly. Yeah, exactly. Very selflessly they helped us. They in guided every us part. कि मतलब ये इस वे में बेटर लगेगा, ये इस वे में, एंड वी along, मतलब वो नहीं था कि आई एम द डायरेक्टर, मैं जैसा बोलो वैसे, नो, एज दे सेड वैसे ही हम लोगों ने किया था. एंड या दिस इज द प्रोडक्ट जिसमें सबका इनपुट लगा है. कहते हैं ना कि एक मतलब सही टीचर मिल जाए तो Of course, फिर of course. सारे स्टूडेंट ही छा जाएंगे. बट यार नंदिका, अगेन कमिंग बैक टू यू, because you are the lead vocalist and we do not have the other vocalist right now. So how many takes did you take to understand how to go about this song, and was there any improvisation on any part? Yeah, there have been जैसे फर्स्ट में जब मैंने रफ रिकॉर्डिंग भेजा था, दैट टाइम इट वाज फाइन कि हाँ ठीक है रफ है, गा के भेजना है कि कैसा लग रहा है मेरी आवाज़ में. तो दैट टाइम इट वाज लाइक हाँ अच्छा गाया, इसमें थोड़ा बीच बीच में ये चेंजेस है, काफ़ी चेंजेस आए इन द प्रोसेस. बट कंप्लेन कर रही है. नहीं कंप्लेन नहीं प्लीज, अब मतलब तो रीज हो गया, अब तो क्या है, करते रहो कंप्लेन. नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी चेंजेस आए, जितने भी इम्प्रोवाइजेशंस आए, बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में. एंड मेन हुआ था स्टूडियो में. उमंग बताएगा वो तो. When Nandika को मैंने I sent the song in my voice. I've been hearing the song for 1 year in my own voice. I don't like it much. लड़की का आवाज़ लड़ना नहीं कर, sounds very bad. But when she sent the song, मैं 4 दिन तक तो वही लूप पे सुन रहा हूँ because first draft अगर कोई मेरी आवाज़ सुन के गा सकता है इतना अच्छा, it's awesome. And गाना was in suppose 1 scale एक पूरे वक्त तक. वो अब गलती स्टूडियो में गए तो हमने कानपुरा प्ले कर दिया. It's a very funny story by the way. And low scale पे था because high notes hit नहीं हो रहे थे. अब गलती से गलत स्केल प्ले हो गया, हाई था वो. वी डिडंट रियलाइज, हम लोग पता नहीं है क्या है. एंड आधा घंटा हो गया, रिकॉर्डिंग चल रहा है, नंदिका इज सिंगिंग द हाई नोट्स, लग रहे हैं. मैं बोला हाँ ठीक है आ जाओ, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड लेट्स कम बैक एंड लेट्स थोड़ा सा समझते क्या हो रहा है. व्हेन ही प्लेड इट, कुछ ना कुछ हमें लगा कि उसको गड़बड़ है, कुछ मैच नहीं हो रहा दो साउंड्स. तो मैंने चेक किया, तानपुरा का स्केल वाज अ हायर नोट, सो द स्केल वाज नॉट बीइंग एबल टू बी टच्ड पहले. बट व्हेन वी सॉ कि हो गया, ऑटोमेटिकली आधे घंटे के अंदर अंदर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, स्केल वाज एफ शार्प एंड वी वर लाइक कि ये हिट कैसे हो गया. नोट्स आर वेरी अंतरे में खास करके. कैन यू सिंग द So मतलब basically the note was higher than the one that you guys had decided, and Yeah. you improvised it on spot and you sang to the higher note. I did not know She did not कि know. the scale was गलती on से F improvise हो sharp. गया. बेसिकली सिंगल गलती से हो गया. स्केल अगर आप प्ले कर दो तो उस पे गा लेगा, गाना पड़ेगा, उसको पता नहीं कि स्केल कौन सा है. Right. तो वो शी स्टार्टेड एंड शी वाज फ्लॉलेस, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, हमें मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ. एंड देन वी कॉल कि भैया कर ले इस पे, बोला हाँ कर लो, डन. सो वी चेंज द एंटायर स्केल ऑफ द सॉन्ग एंड Wow. it's all credit to Nandika. She managed to do this in that time. I myself did not realize, मतलब लो स्केल इसलिए चूज किया था बिकॉज एट दैट टाइम मेरा गला थोड़ा खराब था, तो ऐसा लगता इतना हाई में नहीं जाएगा. बट कुणाल गांजा वाला in the what show. Just ignore it. So my voice is not good. Yeah. भीगे होठ से- Exactly. So this is how you land the joke. Okay. थोड़ा सा Learning. No, it's Still in college. Reshmi too. fine, it's fine. Even if you land a joke, you'll land up in jail. Yeah, of course. अरे तो भाई फिर बाद में जब तक रिकॉर्डिंग का टाइम आया तब तक गला एकदम ठीक था, बट वी डिड नॉट इम्प्रोवाइज, मतलब वी डिड नॉट थिंक अबाउट द स्केल कि हाँ और हाई जा सकता है कि नहीं. तो बाद में जब ये वाला मैसअप हुआ ना कि एफ से एफ शार्प में चला गया, मतलब पहले तो क्या हुआ,
ट्रैक से जब हम लोग मैच करके देख रहे थे लग रहा था कुछ डिफरेंट है. हाँ वी बोले कि क्या हो रहा है, कुछ गलत गा दिया. हाँ फिर बाद में वो उन्होंने बोला जो स्टूडियो में थे, उन्होंने बोला कि आपका स्केल F शार्प है एंड ट्रैक का स्केल इज़ F. एंड तब वी रियलाइज कि इतना ईज के साथ F शार्प में हो गया. मतलब इट वेंट परफेक्ट. ऐसा कुछ पता भी नहीं चला कि स्केल हाई है. एंड तुरंत उमंग तो मैं तुरंत प्रत्युष भैया को कॉल करके ना खुशखबरी देता हूँ कि हाई में चला गया, कि वो बोल रहे थे क्या एक्साइटमेंट आया होगा उस बहुत मजा आया नमन. इट्स अनबिलीवेबल जब कुछ द प्रोसेस वाज यू नो ब्यूटीफुल. एंड क्या है ना, इंसान कुछ बनाते हैं, मशीन कुछ करता है, बट जब भगवान आते हैं पिक्चर में तो अच्छा लगता है. कुछ डिवाइन भी कुछ हो रहा है तो हाँ मतलब यू मस्ट हैव फेल्ट कि यार कुछ तो हो गया, हम लोग प्लान नहीं कर रहे थे, एवरीथिंग फेल्ट इन प्लेस. दैट इज ग्रेट यार. मतलब बट यार पूरा ये जो प्रोसेस था 1-2 महीना जितना भी लगा आप लोगों को पूरा गाना बनाने में, ठीक है. 1 अप्रैल को रिलीज करना था एंड what was Okay. no I know there is this breathing out and stuff and okay that I can hear, but you are breathing in obviously. मेरे को बस जानना है कि 31st मार्च को आप लोग 1 अप्रैल सुनते ही जो रिएक्शन दियो 31st मार्च को what was going on in your head, right? क्योंकि एक दिन बचा हुआ है, कल रिलीज करना है. स्क्रैप. हम लोग के एक पॉइंट पे हम लोग सोच चुके थे कि लेट्स जस्ट आर्काइव ऑल द पोस्ट वी हैव डन. एंड पता है अच्छा, सो देयर इज दिस थिंग, मेरे भाई ने बोला था कि भैया एक काम करो 1 अप्रैल को रिलीज मत करो एंड जस्ट पोस्ट कि दिस इज अप्रैल फूल स्पेशल, वी आर नॉट रिलीजिंग एनीथिंग. सो दैट वाज एक्चुअली अ पॉइंट जब हम लोगों ने बोला था सारे पोस्ट आर्काइव कर दो, बिकॉज वो प्रोजेक्ट जो 23rd ऑफ मार्च को समथिंग हैपेंड, मतलब टीम में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था एंड द प्रोजेक्ट वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग कैंसल्ड. बट देन फिर सब कुछ ठीक हुआ ग्रेजुअली एंड देन just some group of Yeah. bad days and Yeah. दिविज ने संभाला. दिविज ने रात को 2 घंटे 1 घंटा I इससे mean फोन पे बात करना. I'm sensing a conflict resolution. lot of So the work just stopped 4 on दिन लगे 23rd थे. of March and then resumed on 25th or 26th of I March. called my Guys some from- friend yeah. which I don't talk to anymore and they helped You me had out. to make a lot of adjustments if I'm not wrong. adjustment सबने किए but it took a lot of Adjustments is a wrong, but I think you had to make a lot of sacrifices. sacrifices, right? Sacrifices. Sacrifices बहुत करनी पड़ी थी. And but यार this 31st मार्च को फिर सब ठीक हो गया था. 31st No, मार्च. मैं as I said 31st मार्च के रात के 12 बजे मैंने इसको फ़ोन किया था. यू नो द बैकग्राउंड स्कोर, जब तक गाना स्टार्ट नहीं होता देयर इज दिस 3 मिनट का पार्ट है, सो देयर इज दिस बैकग्राउंड स्कोर. मैंने इसको फ़ोन किया था, ही लिटरली रात के 3 बजे इसने मेरे को फाइनल बैकग्राउंड स्कोर बना के दिया. 31st मार्च It's all on spot because On उसमें कुछ spot. काम नहीं कर रहा, something कुछ is not ये happening काम- and like, exactly. it was not certain कि release होगा कि नहीं. That's why I was in college the next day. So कभी एक बार भी ये दिमाग में नहीं आया कि यार 1 अप्रैल के अलावा 2 अप्रैल को Rose release every day, every day, that's but the the thing. thing, The April story- Fool's special. The story is based The on April story is Fools. based on It 1st wouldn't of make any April, so sense. there's no point of releasing it after. A lot of fights happened because of the date. People said कि date change कर दो, क्या है क्या नहीं है, but it was only one man Yeah, this- he stood by that date, Nigel. Even he suggested 2 things. Either project को पूरा cancel कर दो at that point या फिर next year Next year. निकालो. 1st April 2026. 26 में निकालो. We'll just finish everything and बोला keep it for 1 year. 1st April ही वो Right, date है. लेकिन एक साल तो बहुत ज्यादा procrastination Exactly. होता है. और मैं फिर वापस मन होता मन नहीं फिर- होता. फिर- फिर हाँ, release फिर करने का मन मन उठ नहीं जाता है यार. एक साल में कितने चेंजेस हो जाते हैं. एक साल पहले तो वो भी मेरे साथ. एक हफ्ते पे वो कोई और थी यार. But crazy. अरे यार but going on a very रेशमी के अलावा भी कहीं जाते हैं. ठीक है, मैं पूछना चाहूँगा कि प्रोडक्शंस जैसे आप लोग कर रहे हो, you guys are working on any other project right now together, all four of you? अच्छा, several. एक भी काम We एक don't पे do ढंग से नहीं होता, बस 5-6 पे चल रहा है जंबलिंग. But इतना certain है कि something is coming up with you guys again. Yeah, the thing is कि 2022 से लेकर 2024 तक I and Umang were literally working. I came up with stories, उसको मैं सुनाता था, वो गाने बनाता था. तो इसके कारण 2 या 2.5 साल में कम से कम 25-30 इसके 20-30 20, हो चुके हैं, 25 मेरे उसके डबल पाइल्ड अप हो चुके हैं. और हर फिल्म के लिए समझ ली 2 से 3 गाना. 20 से 25 2 हाँ, साल. वो लिखता अच्छा है और बनाता भी एंड अच्छा वो है. गाना गाना तो उस गाना हिसाब अच्छा से बना लगा. देता है. सो या ही हैव 45-50 सम सॉन्ग्स एंड आई जो देख रहे हैं, give us funding. या क्राउड फंडिंग We'll make producers. चित्र बैंक अकाउंट नंबर Hashtag save Umang and Nilanshil. सेव चित्रकूट, सेव सिनेमा. But coming back to Reshmi, right? So just last question to you guys.
share your experience in detail about Reshmi. And anybody you want to thank, anybody you're grateful for, or anything that you will remember as a vivid memory of your life as Reshmi. मी पर्सनली 3 पीपल, 3 लोगों को थैंक यू बोलूँगा. पहला बात तो प्रत्युष भैया, बिकॉज गाने के 3 बहुत ज़रूरी पार्ट्स होते हैं. एक गाने के पहले का म्यूज़िक, गाने के बीच का म्यूज़िक एंड गाने के एंड का म्यूज़िक. गाना पूरा बन चुका है, वोकल्स हो चुके, लिरिक्स हो चुकी है, बट कुछ चीज़ें एक म्यूजिशियन ही कर सकते हैं. मुझे आता नहीं उतना कुछ, तो उन्होंने बैठा एंड रात को बैठ के हम दोनों ने फिगर आउट किया एंड इट वाज मेनली हिम. एंड गाने के एंड में एक धुन आती है, बांसुरी की धुन आती है. आई लव दैट. इट्स द मतलब अगर कोई इंसान गाना पूरा नहीं सुने, 5 मिनट का गाना है, इफ़ दैट पर्सन लिसन्स टू दैट एंड वाला 10 सेकेंड, मेरे लिए वो काफ़ी है कि उसने वो 10 सेकेंड सुना है. अच्छा पार्ट है. अच्छा. एंड श्रेयस भैया ने तो खुद सब कुछ लाइव प्रोड्यूस किया. आई वाज सीइंग हिम प्लेइंग द एंटायर थिंग्स लाइव एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन इमेजिन कि कोई ऐसे कर सकता है. दैट एंड थर्ड पर्सन ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू एंड नीलांचल स्पेसिफिकली, बिकॉज पहला गाना कहने को तो रिलीज यही है. हाँ, एंड बनाए तो बहुत कुछ बनाए कितना. कितने नैना कुछ- से द थिंग स्टार्टेड फ्रॉम खुश से शुरू द हुआ था. थिंग स्टार्टेड फ्रॉम 2021 जब उसने इट पहला वाज सपोज्ड टू बी गाना बनाया केके का गाना यार. नमन केके के लिए हमने मतलब बच्चे थे उस समय, तो अभी भी हाँ. हैं ही, बट तब भी सोचे थे कि कब वो गा देंगे हमारे लिए. एंड देन इन 1 year or so, some था. months 6-7 months. some months we made the song and his story. We wanted in each other कि वो गाए कभी केके साहब. एंड 6 months later his news came. That night we remember कि That when he night, passed yeah, away, we both were just We were on a sitting for Google 40 Meet minutes and, on and just silent. some friend called us Exactly. constantly केके चला गया. मतलब कि पहले It 5 felt very- मिनट it पहले 5 मिनट बिलीव नहीं हुआ जोक था. लगा. हाँ. एंड गूगल किया, बंगाली Google तक तो आर्टिकल्स believe पे आ नहीं हो रहे रहा हैं, बिकॉज़ था. बंगाली आर्टिकल हाँ. पे पहले आएंगे. एंड so on, बट रिलीज तो पहला यही है. आगे होपफुली अच्छे चीजें रहे एंड लांचर एंड पीपल. चैनल का मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. इट्स माई फर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग. तो मतलब ऐसे होता है ना कि आई नेवर बी एबल टू फॉरगेट एनीवन ऑन द कि अभी तक आपने सिर्फ कवर्स बनाए. हाँ. सो और मैंने पूरी टीम से नहीं मिला. जैसे आई हैव मेट नीलांचल, उमंग एंड प्रत्युष भी और श्रेयस भी. ऐसे ही बात हुआ है. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, स्पेशली उमंग, प्रत्युष भैया. मतलब उमंग ने इतना हेल्प किया ना गाना के बीच में कि तुम ये करो ये करो. आई वुड कॉल हिम कि ये अगर ये लाइन नहीं हो रहा है, ये वर्ड नहीं हो रहा है, तो बहुत आराम से कि हाँ ये बेकरारी, अरे तुमको जैसे करना है करो, जैसे हो रहा है हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, स्टूडियो में जाके ठीक हो जाएगा वैसा. एंड प्रत्युष भैया ने भी काफ़ी हेल्प किया. जैसे कितनी बार होता था ना कि ये लाइन का मुझे ऐसे कभी डाउट्स होता था कि ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है. तो ऐसे रात में आई वुड कॉल कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा पार्ट ठीक लग रहा है. तो ही वजह जैसे हाँ ये ठीक है, ये वाला रखिए, मत रखिए, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसके साथ रेशमी के साथ यही जाएगा. मतलब इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस वैसे तो. That's great. That's great. And you sung it really well. So congratulations, For the Andika, for first that. time. Yeah. And congratulations to Umang, congratulations to Umang, Nandika, Nalanchal, as well as Divij for this amazing song. But Divij, any Yeah. feedbacks from your side? Yeah, I would say it was really fun and इन लोग को बीच में झगड़ते थे. एक बार तो मजा आ रहा था बड़ा. प्रोजेक्ट पहले खत्म कर ले. Sadistic आदमी है. नहीं, प्रोजेक्ट पहले खत्म कर ले. बट फिर लड़ो. मेरा पैसा लगा हुआ है इसमें. नहीं, दैट्स नॉट एक बात तो. बट हाँ, इट वाज रियली फन एंड Nandika's voice and Pratyush's voice, all of them were great, really great. मतलब it was like a first time experience for me as well. इसके साथ movies already बना चुका हूँ, but music पे specifically सिर्फ music पे focused ये first project था and it was really nice. मतलब बहुत कुछ देखने मिला first hand. बहुत कुछ समझने मिला, देखने मिला. And you guys are friends, so technically that also keeps you guys together. Yes, correct. But because he has that forte and you do not have that forte, तो आपको भी इस फील्ड के बारे में कितना कुछ जानने मिला होगा. Actually, I do have some past experience, but I'm a drummer myself, and Oh, I crazy. actually I would say not just a drummer. I'm a percussionist, so I play Wow. काउन, drums. थोड़ा बहुत ऐसे ही वो bongo भी बजाया था, but हाँ, तो वो एक experience है. Plus, I did make like a very what would you say? School में ऐसे ही थोड़ा सा project किया था. It was kind of an EDM song I made and published it to all the platforms. So it didn't run much. बजा रहे हैं स्कूल में यार. Crazy. नहीं, बना मतलब it was रहे like a हो first time experience. So वहाँ से I thought कि I'll do this someday, not really as a profession, but it is something that I like. तो इसमें I want to keep a touch. तो जिस दिन ये college में मिला, उस दिन के बाद से like it's
like a really big story, तो वो बता के फायदा नहीं, but just say कि आज इसके वजह से I'm able to Content do all of those things, not directly, but at least I'm involved there. Definitely. That's great. That's great. You guys are पूरा एकदम ना friendship goals बोला जाए तो स्कूल से ही होके रखा है यार, बहुत लड़ाई है उसके ऊपर। उमंग, are you jealous? हाँ उमंग, are you jealous? एंड एक तो उमंग का है उससे इसके दिमाग में इतना कुछ चलते रहता है। आई रिमेंबर जिस दिन रिकॉर्डिंग था ना, उसी रात को हम लोग मीट पे थे, हम और उमंग, कि एक बार पूरा फाइनल कर लेते हैं गाना क्या करना है कैसे करना है। वो आइडिया पे आइडिया दे जा रहे हैं, ये लाइन को ऐसे भी कर सकते हैं, ये धुन ऐसे भी हो सकता है, एंड ना मुझे याद नहीं रह रहा, मैं ना वीडियो बनाने जा रही ऐसा हो हूँ। गया कि बहुत सारे आइडियाज है इनके पास, बट ये समझ नहीं पाता कौन सा करना है। Just because तो of वहां the पे नीलांचल आता है, आई थिंक, ठीक है, हाँ। कि यार यही करना है बस। घंटा ये खुद ही तो बोल रहे हैं। नहीं नहीं डिसीजन मेकिंग उसका म्यूजिक में या तो वो कुछ ऐसा नमन ठान लेगा तो नहीं यही होगा, भले तू मर जा, या तो फिर वो ये बहुत रेयर होता है, लेकिन जब होता है तो ये कर बट ले। ऐसे तो फिर ऐसी ये कर गाना चेंज कर दे, जो जो कर कर लेगा। लेगा, देखो जो सही लगे तो कर ले, उसको फर्क नहीं द है। क्रेडिट्स रोल जो हो रहा था, मैं इनपुट ही नहीं था, मैं लिख के दिया ऐसे मतलब फॉन्ट क्या चाहिए, कलर क्या जो चाहिए, अपने जो मन अच्छा लगे जो कर अच्छा ले। लगे कर। वो मैं लास्ट मैंने भी सुना था नीलांचल के यार बारे में। ये एक्सपीरियंस मुझे नीलांचल के मुंह से अब सुनना है, बिकॉज़ मैंने एक्सपीरियंस ओके सो या सो एज यू आस्क कि थैंक्स वगैरह का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेन्युइन जो मेरा थैंक्स रहेगा, मतलब देयर दिस थिंग मेरे हर फिल्म के स्टार्टिंग में जो 2U वाला पार्ट रहता है, सो आई डोंट नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई एम राइटिंग इट फॉर हूम एग्जैक्टली आई एम, बट 2U विद रीअश्योरेंस जो इस पार्ट में इस म्यूजिक वीडियो के लिए कौन है यार? वो तो थोड़ा पता मुझे तो लगने दो ओब्लिवियन में जी रहा है बंदा, किसी को बस- रैंडम थैंक्स कर दे रहा है। एग्जैक्टली सो मुझे क्यों लग रहा है कोई सीक्रेट ऐसा है, मतलब आप बता नहीं मुझे रहे भी हो। लग रहा है, बट लेट मी जस्ट डिस्कवर इट कि व्हाट Split एग्जैक्टली personality problem. या इसको ठीक सो है जस्ट फॉर creepy आदमी है। फॉर दैट इंस्पिरेशन एंड उसके बाद द टीम फर्स्ट ऑफ ऑल उमंग, क्योंकि मेरा कोई भी कहानी हो, अब मैं कॉन्फिडेंस हूँ अंडर कॉन्फिडेंस हूँ, मैं इसको सुनाता ही हूँ, एंड उसके बाद अगर गाना लगता है तो कईयों में तो अच्छा देयर इज दिस थिंग, कई बार एक दो बार ऐसा हुआ है कि आई डिडंट प्लान अ सॉन्ग फॉर दैट सीन, उमंग ने गाना बना दिया है और वो मुझे इतना अच्छा लगा, आई वाज लाइक कि कीप दिस सॉन्ग इन द फिल्म, आई राइट अ सीन फॉर He's इट, tired. He Yeah. doesn't call me anymore. कुछ गाना दे देगा फट से। कुछ गाना दे देगा, मतलब ही गेव मी अ सॉन्ग, भाई गाना तो बढ़िया, आई विल राइट अ सीन फॉर इट। सो ऑफ कोर्स उमंग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अप्रोचिंग, ये करने के बाद द एंटायर टीम स्पेसिफिकली प्राजन भैया एंड आकांक्षा दी, मतलब उनके बिना द एक्सपीरियंस दे ब्रिंग इन एंड द क्या बोलूँ, मतलब द हेल्पफुलनेस, सब कुछ, मतलब काफ़ी सेल्फलेस होके दे वर्क टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट एंड आफ्टर ऑल द नंदिका एंड प्रत्युष फॉर द वोकल्स, श्रेयस भैया फॉर अरेंजमेंट, दिविज फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, एंड बाकी जो Credits चला दे तो पूरा पूरा क्रेडिट्स, हाँ क्या कर रहा है? एंड फाइनली मतलब द ऑडियंस हाउ दे रिसीव द तेरा एक्सपीरियंस पूछा। नहीं यही एक्सपीरियंस, ये तेरा एक्सपीरियंस, थैंक यू तेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू एक्सपीरियंस वाज अ वेरी बिटर सोता है साला 12 बजे के बाद में, घंटे का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है इसका। नहीं जागता, मैं सोता हूँ ये जागता है भाई, उसके But बाद ये यार, जाग के सुनने बताता में तो है बहुत लग रहा है कि बहुत फन आया आप लोग को। Fun तो है, नीलांचल bittersweet के बारे था। में उमंग से मैंने नहीं सुना था, ये कुछ तो हम लोग का था कि ये बेटर लग रहा है कि, तो मैंने बोला नीलांचल से पूछ लेते हैं, तो उमंग वाज लाइक उसको छोड़ दो, वो कुछ नहीं बताने मैं वाले, कुछ नहीं बोलेगा ये भी बताने अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे जो तुम्हारे मन भाई में हो। जल्दी They were- दे ना, जल्दी they दे were ना, ये- sending the unmixed track जिसमें म्यूजिक कहीं साउंड करे, वोकल्स में बोला ये लोग बोल रहे कि नहीं मिक्स होने के बाद He इसमें क्या approved मिक्स the करेंगे, third draft, ना, man. या अप्रूव द थर्ड ड्राफ्ट कि हाँ ये फाइनल है, इसी को फिल्म में रख देते हैं, फिर बोला कि नहीं इसमें तो अभी और चीज आएगा, like नीलांचल is what I am, ठीक है, when I'm not With working. less awards. When I'm not working. अरे नहीं, when I'm not working, because when I'm working I'm like perfectionist कि यार मुझे चाहिए कि सब एकदम वैसा हो वैसा हो वैसा हो, बट फिर जब मन नहीं करता काम करें, छोड़ना यार, ठीक है, तेरे को जो करना है नहीं कर। मेरा वही फिर मतलब एक तो वीडियो के रिगार्डिंग जो भी प्लान्स था, विजन्स था, वो ऑलमोस्ट पूरा एग्जीक्यूट हुआ, गाने में I think I'll just interrupt you here because I think नीलांचल का ये ट्रस्ट इसलिए है कि छोड़ना यार जो है संभाल लेगा। हाँ, संभाल लेगा वाला पक्का। नेचर है बिकॉज उमंग है, या right? So he Honestly. has that trust on Umang. That is why you have the trust on Umang. That is why you are always like कि देख लेंगे बहुत बड़ा कुत्ता आदमी है। FAQ सेक्शन में हमने कल स्टोरी पुट अप किया FAQ के लिए, किसी ने घंटा किसी ने पूछा नहीं, ये हरामखोर खुद रिप्लाई करता है स्टोरी के ऊपर में, हाउ वाज इट वर्किंग विद राजा मौली। कितना सेल्फ प्लीजिंग आदमी है ये, बदतमीज, बिग है no one else compliments me, so I was like मैं क्या ये
No, it's fine. I think most of the Gen Zs did that when वो NGL वगैरह होता था ना. Right. Oh, yeah, Random they used to question. write, yeah. Randomly कुछ भी. Who's your crush? ये लड़का. हाँ. पूछा कौन भाई? पूछा कौन? दिखाओ. तो But, बहुत लोग करते थे. मैंने तो ये किया ही नहीं कभी NGL वाला. But ठीक है, it's great to see you guys. Yeah, I think I should. And do an after NGL. passing out of college. Still a dream for many. Cannot be this personal, buddy. But that is not college, that is university. छोड़ो यार मैटर सब जुड़े से. ये काम देना. ये कट जाएगा. ये नहीं Edit में कट. ये नहीं जाएगा. बैन तेरे हाथ में है। Cancel. मेरा डिग्री बाकी है भाई. मेरा भी. इसका भी ये एक मेरा प्रोफेशन भाई जो तेरे को लगेगा आफ्टर मेरा डिग्री के पहले 3rd डिग्री हो गया है. चलो तुम लोग सब पानी Naman, पी रहे final हो. words about mic drop community. I want to hear your perspective. What's I your- think firstly guys, thank you so much for this taking out your time and thank you for doing this. Arey, obviously. I think Reshmi is gonna be very successful. You guys are really hardworking. So congratulations to you guys. And I'm really rooting for manifesting actually, not even rooting, manifesting for Reshmi to be bigger and for you guys to be more successful and to keep आप लोग भी ऐसे continue करते रहे, ऐसे गाने बनाते रहिए फ्यूचर में भी. And it was great to have me for you guys. But नहीं, it was great to be here. I really enjoyed myself. I always thought कि यार ये इंटरव्यू कैसे लूँगा मैं यार, मतलब मैं कल भी सोच रहा था रात को कि कैसे लूँगा, क्या यार ये गाना है, अब मैं क्या पूछूँ कि You ये should do कैसे this गाया. more, but you should start the same thing. I genuinely want you to start. बस हाँ कुछ यार. छोड़ेगा नहीं बस. रणवीर इसको छोड़ना चाहिए भी नहीं. पूरा. छी, तुम किसका नाम लो? Overtake. क्या आपके पास ही आती है? कि अपनी मौत के बारे में Would सोचते you हैं. rather sing another song or इसमें वेन्यू की कोई गलती नहीं है. इसको मत तोड़िए. कुर्सियां भी नहीं है यहाँ पे. पीछे तो वेज भी नहीं है. But yeah, thank you so much guys and it's been really fun and you also guys want to name him. प्रत्युष भैया, शेष भैया, आप लोग हो नहीं बट दिल में हो. थैंक यू सो यार मच. कैमरे के पीछे वाले बंदे को तो नीम कर दो यार. Chris Dattani, guys, camera work has been done all by Chris Dattani. Thank you so much for coming within a very short notice and he's a darling. Thank you so much, Chris. Love you. I was nowhere involved in the love you part of it. But Pucci wale part pe we can talk about Yeah. later. And I'm Naman Chandak. I've introduced myself. I'm a stand-up comedian and a poet, and I really love talking to people. And I have had the experience of reporting and interviewing people since a really long time. From interviewing Javed Akhtar to idiots. Umang. बहुत लकी रहा हूँ. टचवुड वुड का है. वुड तो ये वो तो पकड़ है लेता हूँ. सबके हाँ. बहुत लकी रहा हूँ कि क्लास 6 से ऐसे इंटरव्यू करने का मौका मिला. बहुत चुनिंदा लोगों से, वेरी रिनाउंड पर्सनालिटीज एंड Like. अरे नहीं यार, David सब Jen. अपने ही है. नहीं, And it was really great and my blog community is also something that I made and it is just जैसे इनका क्रिएशन है ये गाना, मेरा क्रिएशन है माइक ड्रॉप कम्युनिटी, बिकॉज मुझे गाना तो नहीं. ऑल्सो गाइज we are shooting this at the Shubham Banquets. It's a really amazing banquet located in Salkia near Howrah EC. And if you guys are ever wanting to host any function, any event, you guys have Shubham Banquets and Shubham Banquets. And Shubham Banquets के यहाँ पे मालिक ही बैठे हुए हैं. ठीक है. सेठ जी. नहीं सेठ जी इधर बैठे नहीं हैं. डेफिनेटली विजिट करिए एंड वी हैव अ रेस्टोरेंट एज वेल व्हिच इज सून गोइंग टू बी रीनेम्ड. सो अभी नेम रिवील तो नहीं कर रहा मैं, बट हाँ ऑल टाइप्स ऑफ मल्टी किजिन थिंग्स यहाँ पर रहेगा एंड होपफुली आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग नमन एंड हिज माइक ड्रॉप कम्युनिटी एज वेल. Crazy. सो विल हावड़ा काम आ audience. गया, काम आ गया. Howrah audience. definitely I thought he Howrah will audience, get let's some call it from event. Bangladesh. Give it up, Bangladesh. मजाक करो, but yeah, thank you guys. It's been great. Can we have a round of applause for everyone here? Thank you.